मटिया बुर्ज के 2 बार के एमएलए रह चुके अब्दुल खालिक मुल्ला को दोबारा तृणमूल की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने एक प्रेस मीट की। इस दौरान टीएमसी की जानिब से जारी करदा इंतखाबी मंशूर के बाबत बात करते हुए अपनी 10 साला कारकर्दगी को भी बताया। কর্মসূচিতে যে অঙ্গীকার তিনি ইশতেহারে করেছেন সেইটা নিয়ে আমরা এখানে ডিসকাশন বলুন 35 লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র থেকে উদ্ধার একটি কর্মসূচি দারিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষের জোরে বলে ভালো দারিদ্র নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা 20% থেকে কমিয়ে 5% করা হয়েছে। রাজ্যে 5 লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা, রাজ্যের বেকারত্বের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা, প্রত্যেকটি পরিবার স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে মাসিক 500 টাকা ভাতা, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে 10 লক্ষ টাকা আবাসন তৈরি, কৃষক বন্ধু প্রকল্পে বছরে 10,000 টাকা করে পাবেন 68 লক্ষ কৃষক, বড় শিল্পে 5 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ, 10 লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ইউনিট তৈরি, প্রতিটি ব্লকে মডেল আবাসিক স্কুল তৈরি, সবল যুব নামে নয়া প্রকল্প চালু। এই প্রকল্পে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে 10 লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হবে পড়ুয়াদের, প্রত্যেকটি ঘরে জল ও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। এই 10টি অঙ্গীকার তিনি করেছেন, সেটা আপনাদের সামনে পড়ে শোনালাম। খালিক সাহেব, আপনি তো নমিনেশন ফাইল করেছেন, আপনি বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন ভোট প্রচারে, কি বলছেন? প্রচণ্ড সারা মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলছে যে আমরা এবারে মমতা ব্যানার্জিকে ছাড়া, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দেব। কোনো আক্ষেপ রয়েছে? জিতলে প্রথম কাজ কী করবেন? জিতলে প্রথমটাই করবো, আমার এখানে মেডিয়াপুর সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল আছে, 368টা বেড দিদি করে দিয়েছেন। সেই হসপিটালে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্যে, যাতে ওটা পিজি বা অন্যান্য সরকারি যে হাসপাতালের সমকক্ষ করার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। এবং বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পানীয় জলের যে অভাব আছে, সেই পানীয় জলের অভাবটা দূর করার জন্যে আমাদের নতুন যে প্রজেক্ট একটি চালু হয়েছে, সেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কাজ সম্পন্ন হবে। আইএসএফ এখানে প্রার্থী দিয়েছে, কি মনে হয় ভোট কাটাকাটি হবে কি? না, আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে, সে প্রার্থীর এখানে কোনো নেই, প্রভাব নেই। আর দ্বিতীয় কথা, এখানকার মানুষ, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মানুষ, বাঙালি মুসলিম এবং অবাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় পুরোপুরি মমতা ব্যানার্জিকে সাপোর্ট করছে। তার কারণ মমতা ব্যানার্জি মুসলিমদের জন্য অনেক কাজ করেছে, ইমাম ভাতা, মুয়াজ্জিম ভাতা থেকে নিয়ে মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি বাকরি দেওয়া, তাদের স্বাবলম্বী করা, এইসব কাজ করেছে। সাধারণ মানুষ মমতা ব্যানার্জিকে চায় এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘুরা আরও বেশি করে চায়। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? আমি জেতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশাবাদী। এখন আমরা চিন্তা করছি মার্জিন কতটা হয়, মার্জিন নিয়ে আমাদের চিন্তা, জিতের সম্বন্ধে আমাদের কোনো চিন্তা। इधर तो जो सिटी की सरकार जो कैंडिडेट दिया हुआ है, आपको क्या लगता है वोट क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ किसी का नहीं चलेगा। यहाँ अगर चलेगा तो सिर्फ दीदी का चलेगा। यहाँ किसी का जादू नहीं चलेगा। ये बंगाल है, ये काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, ये स्वामी विवेकानंद का बंगाल है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। यहाँ चलेगा तो सिर्फ दीदी का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। खेला भी होगा, जीत भी होगा और इंशाल्लाह हम लोग ही जीतेंगे और हमारी ही गवर्नमेंट बनेगी। जहाँ तक हमारे एमएलए थे और फिलहाल अभी कैंडिडेट है एमएलए के, इंशाल्लाह आने वाला कल हम लोग इसलिए टेंशन में नहीं है मटिया बुर्ज विधानसभा कि यहाँ पर हम लोगों का जीत कितना होगा। हम लोग ज़्यादा टेंशन में ये है कि पूरे पश्चिम बंगाल में 294 सीट में अगर कोई टॉप होगा तो वो मटिया बुर्ज असेंबली 157 होगा। आप लोग तो कैंपेनिंग में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, पब्लिक का क्या करना है? हम लोग तो शुरू से ही कैंपेनिंग में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। दीदी को बोलो, द्वारे सरकार के लेके एक एक चीज़ का लेकर हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। पब्लिक हम लोगों के साथ है, हम लोग शुरू से पब्लिक के साथ है। इसलिए जनता जनार्दन है, वो अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है कि वो सिर्फ जोड़ा फूल को पहचानती है। और हमारी दीदी, हमारे बंगाल के रॉयल बंगाल टाइगर शेरनी ममता बनर्जी
उनको देखकर तमाम जाति के लोग हमारी दीदी को ही वोट देंगे और आने वाला कल 2 मई को जो रिजल्ट होगा पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि बंगाल में हमारी दीदी का ही राज था और राज रहेगा और 3rd टाइम सीएम हमारी दीदी बनेगी। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार करेगा तो कहाँ बीजेपी है मेरे भाई, कैंडिडेट खोज के नहीं मिल रहा है। कौन भारत जलाओ पार्टी के चक्कर में आप है, एमपी को बुला के एमएलए बना रहा है, एमएलए को बुला के एमपी बना रहा है। कहाँ है आप, कैंडिडेट नहीं है उनके पास, पब्लिक तो दूर है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। 10 साल का कार्ड हम लोग दिखा चुके हैं, गारंटी कार्ड। 7 साल जो दिल्ली में सरकार चल रही है वो क्या दिखा रहे हैं? 390 रुपये गैस का दाम था, 900 रुपये हो गया, वो दिखाएंगे। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, वो दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, हमारी दीदी, अगर एक बच्चा भी पैदा होता है उसके लिए भी रकम दिया जाता है। अगर कोई मर के शमशान घाट कब्रिस्तान चला जाता है, उसके मट्टी और उसके शमशान घाट का भी रकम हमारी गवर्नमेंट देती है। हर मोड़ पर, हर जगह पर दीदी है। आपके घर में अगर आपकी बेटी है तो उसको कन्याश्री मिल रहा है, बेटी का शादी है तो रूपाश्री मिल रहा है। हर मोड़ पे आपके साथ है। सीनियर सिटीजनशिप का आपको मिल रहा है, बेवा को उसका फंड मिल रहा है, अगर बच्चा पैदा हो रहा है उसको मिल रहा है। एक फैमिली में हर आदमी को अपने अपने तरीक़े से पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हमारी दीदी का यही पैगाम है कि माँ से भी जुड़ कर रहना है, मट्टी से भी जुड़ कर रहना है और इंसान से भी जुड़ कर रहना है। तो दीदी का पैगाम इंसानियत का पैगाम है और दीदी ने वो पैगाम दिया है। और आप आज देख लीजिए कि आने वाला कल आपको खुद पता चल जाएगा। आप मीडिया है, कोई बात आपको तो छुपेगा नहीं। कुछ गोदी मीडिया है जो अपने तरीके से प्रचार कर रही है, लेकिन मैं सबको नहीं कहता, कुछ है। अब कुछ के वजह से अच्छे लोग भी बदनाम हैं। तो ये आप लोग को अपना पैगाम पहुंचाना है कि बंगाल में दीदी ने क्या किया, क्या नहीं किया। आप खुद अपने दिल से हाथ रख के पूछिए कि दीदी ने क्या नहीं किया। सब कुछ तो दिया है, इज्जत दिया, सम्मान दिया, और क्या देगी। ये लोग क्या दे रहे हैं? हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश, इनके पास टॉपिक क्या है विकास का? थैंक यू।